सत श्री अकाल। एतिमान चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं राधिका शर्मा करदी हां निੱਘਾ स्वागत। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਐਨਏ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸੈਕਟਰ 10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 175 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਏਐਸਪੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ 16 ਵੈਕਸੀਨ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 30 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 35 ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਐਨਏ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਫੇਜ਼ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਜੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਏ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਖਾਰ ਆਨੰਦ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤਨੇਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਲੀ ਤਨੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਡਮ ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਏਤਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਏਤਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋਤੀ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। मैडम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। मेरा नाम ज्योति खन्ना है और मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ और एनए कल्चर सोसाइटी की एक पार्ट हूँ। और आज हमने एक प्रोग्राम रखा था जो कि एक अवार्ड फंक्शन था, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है ये कोरोना के टाइम में। तो हमने सोचा उनको थैंक तो करना ही चाहिए। ये एक ग्रैटिट्यूड था जो हमने उनको अवार्ड और सर्टिफिकेट्स दे के किया है। तो आज जो प्रोग्राम था उन सब को हमने ऑनर किया अवार्ड देकर और प्राइजेस देकर, जो कि एनए कल्चर सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और जो एनए कल्चर सोसाइटी की प्रेसिडेंट है, बहुत ही यंग ब्लड है और बहुत ही हाई स्पिरिटेड गर्ल है, वो इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट एंड ऑनर है। सो उन्होंने ही करवाया ये प्रोग्राम। सो हमने सोचा उन फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ऑनर करना बहुत ज़रूरी था, जो हमारे देश के लिए इतना कुछ किया उन्होंने और कर भी रहे हैं। सो ये सब उनके ऑनर में था अवार्ड फंक्शन फॉर फ्रंट लाइन वॉरियर्स, कांस्टेबल, नर्सेस एंड ऑल। थैंक यू। ਐਨਏ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਐਨਏ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਵੰਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਇੰਟਰਵਿਊ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰੀਓਮ। ਹਰੀਓਮ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਘਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। अगर मैं बोलूं कि हमने हेल्प करी है तो हमने नहीं करी, बट हाँ कुछ यूज़फुल बना दिया है प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें, कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है इसको कुछ यूज़फुल करें। तो एक लाइन जिस पे हम काम करते हैं, कोई तन से अपंग ना रहे, कोई मन से अपंग ना रहे। और कोरोना से डर के बहुत लोग मन से अपंग हो गए थे, जिसकी वजह से कोरोना इतना तंग नहीं कर रहा था जितना उनका डर जो उनके ऊपर हावी हो रहा था। तो डॉक्टर्स नर्सेस दिन रात काम कर रहे थे, पर उनका डर उस बीमारी को उनको मतलब बीमारी उनको नहीं लेके जा रही थी, उनका डर उनको तंग कर रहा था।
तो गुरु की कृपा से आशीर्वाद मिला और सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि हमारे शरीर के अंदर हज़ारों डॉक्टर भी काम करते हैं और वो परमात्मा के नाम से काम करते हैं। तो जब भी यदि हमारा अपने अंदर विश्वास है, यदि हमें विश्वास है कि प्रकृति हमें हील कर सकती है, यदि हम सूरज को समझते हैं, यदि हम तुलसा जी को समझते हैं, यदि हम अपने भारत की संस्कृति को समझते हैं, तो हमें अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला। हम सही हों और बाकी सारे भी हील हो। तो अगर एक मनुष्य खुश है, दूसरा मनुष्य भी खुश रहे, तो इसको प्रकृति कहते हैं। हम खुश हैं, दूसरा दुखी है, इसको विकृति कहते हैं। लेकिन दूसरा आनंद में रहे, हम चाहे थोड़े से अनकंफर्टेबल रहें, इसको ही भारत की संस्कृति कहते हैं। तो अपनी संस्कृति से मिलाने का थोड़ा सा प्रयास किया है और सबको बहुत आराम मिला। बहुतों की सर्जरीज टल गई, जिनको डॉक्टर ने बोला नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी, उन्होंने सिर्फ अपने घुटनों को बोला हम आपको प्रणाम करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, घुटनों को रिप्लेस नहीं कराना पड़ा। किसी को हार्ट सर्जरी बताई थी, उसने अपने हार्ट को बोला आई लव यू, तुम तो पूरे दिन रात मेरे लिए धड़कते हो। किसी को हम चाय पिलाते हैं, हम सोचते हैं सामने वाला थैंक यू बोले। और हमारे हर एक अंग दिन रात काम करते हैं, उनकी कोई हॉलीडे नहीं है, ना संडे को, ना गेस्टेड, ना रात को, वो दिन रात चुपचाप काम करते हैं। बस उन्हीं से थोड़ी दोस्ती कराई कि अपने स्वयं के भीतर बैठे गुरु से मिल लें। ये सांसें कीमती हैं, ये ऊर्जा कीमती है। जो सूरज कभी नहीं बोलता कि मुझे थैंक यू बोलो, हम सबसे बस सुख मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। हमने बोला देने वाले बनो, लेने वाले नहीं बनो। देने वाला मतलब देवता, लेने वाला तो इंसान है। और हम तो मनुष्य का जीवन भी सही से नहीं जी रहे। मनुष्य मतलब जो मन का ईश्वर हो, और हम सब मन के गुलाम हो गए। कोरोना आ गया, सब डर गए, हाहाकार मच गया, कोरोना आ गया। अरे कोरोना को प्रणाम करो, तुम्हारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनाने आया है, तुम्हारे को घर का भोजन खिलाने आया है, तुम्हें अपने बच्चों के साथ खेलने। कितने जेंट्स बोल रहे हैं हम तो सदियों से अपने बच्चों के साथ नहीं खेले थे, अब घर पर रह के बच्चों के साथ खेले हैं। घर में वापस भोजन बनने लगा। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दौलत थी वो थी रसोई माँ के हाथ की, जहाँ पर जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे तन पर, मन पर, धन पर, सब पे असर पड़ता है। अन्न का मन पर, मन का तन पर, तन का धन पर और धन का संबंध पर। हम सब भूल गए थे। हमारी संस्कृति से हमें मिलाया है कोरोना ने। तो मैं तो कोरोना को प्रणाम करती हूँ कि इसने हमें वापस जीवन के मूल्यों का आभास कराया है। शुक्राना आप लोग। लेकिन आप सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, जो सबको इकट्ठा किया आपने एक छत के नीचे, जिसने जो भी सहयोग दिया, सब पे बहुत कृपा है। शुक्राना, शुक्राना। और स्माइल की एक लाइन बोलना चाहूँगी। स्माइल बोलता है, न कोई तन से, न कोई मन से, न कोई तन मन से अपंग हो। स्माइल में आए, ज्ञान बढ़ाए और नया जन्म ले ले। सो स्माइल, just smile, see magic in life every second. Just smile, see magic in life every second. ये जो स्माइल है ना, ये ऐसा खजाना है जो एक गरीब को भी दिया है, एक अपंग को भी दिया है, एक राजा को भी दिया है, एक महाराजा को भी दिया है, पर इसको इस्तेमाल ही नहीं कोई कर रहा। छोटी सी स्माइल दे दो, एक पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है। एक डॉक्टर स्माइल करके किसी को अटेंड कर ले, एक नर्स स्माइल करके अटेंड कर ले। तो यही बांटने की कोशिश कर रहे हैं और सबके जीवन में आए। शुक्राना, थैंक यू। सत श्री अकाल जी। मैम आज तो नॉमिनेट किया था, किस चीज़ वास्ते किया है? आज हमें ये कोविड की जो हुआ था ना, अभी इंडिया में कोविड के मुतलका चला है, उसके हिसाब से जो हमने अपनी ड्यूटियाँ की हैं उस दौरान में 7-8 महीने लगातार, तो हमें उसी की अच्छी ड्यूटी के लिए हमें आज प्रोसेस दी है। कोविड के टाइम में काफ़ी स्ट्रगल रहा ड्यूटी का भी, क्योंकि कोई टाइमिंग नहीं था ड्यूटी का, हमारा किसी टाइम भी आ जाती थी। लेकिन जितना भी रहा, बहुत एक्सपीरियंस रहा इस ड्यूटी में। घर से भी ठीक रहा, बाहर भी अपने लोगों से मिलजुल के किसी की हेल्प, जिस लोगों की हेल्प भी की है खाने के लिए, और किसी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी है, मोस्टली हेल्प की है लोगों को। मैम क्या क्या मुश्किलें पड़ी आपको समाज में जो समाज में हमें थोड़ी बहुत आई हैं कठिनाइयाँ, क्योंकि कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। सबसे पहले जो बुजुर्ग थे वो बाहर नहीं जा सकते थे, उनके लिए मेडिसिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, तो उनके घरों में मेडिसिन भी दी है और उनको खाने पीने के लिए भी पूछा। गरीब लोगों के लिए भी काफ़ी है, क्योंकि आजकल जो सड़कों पे बैठ के मांग के खा लेते हैं, उन सब के लिए बहुत मुश्किल हो गया था इस टाइम में बाहर निकलना। तो जितनी हो सके उतनी हेल्प की है उन लोगों की, कि भी हम खाने के लिए भी, अपनी ड्यूटी के दौरान भी आपने देखा ही है कितना बुरा वक्त था ये। चलो जो भी था, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ इस टाइम में कि हेल्प किया एक पब्लिक के साथ।
और सरकार की तरफ से आपको क्या प्रॉब्लम पड़ी सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से प्रॉब्लम तो खैर कुछ नहीं आई, क्योंकि जो ड्यूटियां हमारी थी वो थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई थी। उसका टाइमिंग था ड्यूटी का। टाइमिंग तो वैसे है नहीं कोई भी, लेकिन इस टाइम में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई थी। हमारे सबके सब रोड पे ही खड़े होते थे, खाने पीने का हो काफ़ी प्रॉब्लम थी जी। आज हमें जो ये सम्मानित किया गया, सबसे पहले हम इन लोगों का शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमें सम्मानित किया, कि इस लायक समझा कि जो कोविड के टाइम में ड्यूटी किया है उनको सम्मानित किया जाए। जिस भी जोन से भी ये संस्था थी उसका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सम्मानित किया। और जो लकी ड्रा निकाले थे उसमें मुझे लकी ड्रा में एक ड्रा मिला है। और आने वाले समय के लिए आप क्या व्यूज़ देना चाहती हैं? आने वाले समय के लिए आने वाले समय में ऐसा वक्त ना आए जो बीत चुका है वो, क्योंकि इस टाइम में बहुत स्ट्रगल दिखा है दुनिया ने, हर किसी के लिए बहुत मुश्किल था। कहते हैं कि अच्छा ही आए आने वाला टाइम, और हम अपनी ड्यूटी के हिसाब से हम अच्छी ड्यूटी करेंगे। थैंक यू। हाँ जी, होर भी जो शख्सियतां मौजूद ने ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी मैडम जी, अपना शुभ नाम जी? प्रिया जैन, सेवा मिशन एनजीओ की प्रेसिडेंट एंड फाउंडर, और ये सेवा मिशन के वाइस प्रेसिडेंट है पूनम भंडारी। तो हमारा एनजीओ एक अलग तरह का एनजीओ है, नॉर्मल एनजीओ नहीं है, जो कि ऐसे नीडी पेशेंट्स, ऐसे नीडी मरीज जो कि अपना इलाज नहीं करवा पाते पूरे नॉर्थ इंडिया से, तो वो जो भी हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में आते हैं और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो हमारा एनजीओ ऐसे मरीजों की हेल्प करता है और इनका इलाज कराता है। चाहे वो कैंसर के मरीज हैं, चाहे वो किडनी पेशेंट है, चाहे वो एक्सीडेंटल आईसीयू पेशेंट्स हैं, कैसे भी पेशेंट्स हैं, हम उनको पूरा ठीक करके हमारा एनजीओ घर पहुंचाता है। ऐसा नहीं कि उनकी हमने थोड़ा सा इलाज करवाया और थोड़े पैसे दिए और बाकी उनको कह दिया कि अपने आप कर लो इलाज, बाकी और कुछ कर ले, ऐसा नहीं हम छोड़ते कभी भी। हमारा एनजीओ में यही स्पेशलिटी है ये वाली, कि पूरा इलाज करवाते हैं। कभी आज तक किसी को मना नहीं किया, और प्रभु की दया भी ऐसी रही है कि हमारे पास कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं रही, क्योंकि हमारा एनजीओ ये मानता है कि अगर हमारे को ये काम प्रभु ने दिया है तो ये काम हम अपना पूरा शिद्दत से निभाएं। और मतलब जितना इलाज हम कर सकते हैं पेशेंट का, जितना कोई पीजीआई का पेशेंट हो, चाहे कोई 32 जीएमसीएच का पेशेंट हो, तो हमने उसका इलाज करवाया है। स्पेशली कोविड के लिए, कोविड में मतलब जैसे कि बाकी एनजीओज़ पीछे हट गए या बाकी और संस्थाएं पीछे हट गई या कुछ भी, लेकिन हमारे एनजीओ ने काम नहीं करना छोड़ा। 24/7 हम लोग इस काम में जुटे रहे, चाहे रात है दिन है, मतलब अगर कोई पेशेंट कहीं से भी आ रहा है जो इमरजेंसी में, हमारा काम नहीं कभी भी रुका। और सेकेंडरी हमारी 2 इलेक्ट्रिक रिक्शास पीजीआई में फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं, जिसमें हम पेशेंट्स के रिलेटिव्स हो, इधर से उधर कहीं से भी उन्होंने जाना आना हो, फ्री ऑफ सर्विस कॉस्ट उनको हम प्रोवाइड करते हैं रिक्शाज़ अपनी। अब हमारी 4 ही रिक्शाज़ हो गई हैं, लेकिन जैसे कि कोविड के टाइम पे सारे पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ना ही रिक्शाज़ चल रहे थे, ना ही 3 व्हीलर चलते थे, लेकिन हमारी रिक्शाज़ को इजाज़त थी पीजीआई की तरफ से, तो हमारी रिक्शाज़ ने मरीजों का साथ कभी नहीं छोड़ा। और कोई भी आसपास के जैसे वो थे, कई कॉलोनीज़ हैं, कुछ भी हैं, उनको राशन की ज़रूरत है, राशन पहुँचाया। पंजाब में कई गाँव ऐसे हैं जिन्होंने कई 100 से भी ऊपर कई घर ऐसे थे एक गांव के, तो जिसको हमने राशन पहुंचाया। और इवन पीपीई किट्स बांटी पीजीआई में और 32 हॉस्पिटल जीएमसीएच में, एंड ऑक्सीमीटर्स बांटे। जो भी मतलब हमारे साथ अब डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं, डॉक्टर्स खुद हमें कांटेक्ट करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में इस चीज़ की ज़रूरत है और आप इस चीज़ को डोनेशन करिए। कोई पेशेंट होता है तो डॉक्टर्स खुद से हमें कॉल करते हैं कि ये पेशेंट की नहीं हेल्प हो पा रही है, तो चाहे वो मेडिकली हेल्प है, चाहे उसकी पेपर वर्क है, चाहे गवर्नमेंट से कोई हेल्प दिलवानी है, तो हमारी संस्था उसमें पूरा योगदान देती है। कभी भी हमारी संस्था पीछे नहीं हटी। तो मतलब हम लोगों को इस चीज़ पे गर्व तो नहीं बोलना चाहिए या कुछ भी प्राउड नहीं कभी भी है, ये ऊपर से दिया हुआ आशीर्वाद है, भगवान के दिया हुआ है, जो हम दोनों बड़ी शिद्दत से निभा रहे हैं किसी भी तरीके से। और हम चाहते हैं मैक्सिमम लोग इस हमारे साथ जुड़े, सो दैट कोई भी पेशेंट इलाज की वजह से ना जाए भगवान के पास। मतलब बाकी तो प्रभु की कृपा होती है, लेकिन बिना इलाज किए कभी भी ऊपर वापस ना जाए। हमारी संस्था का सिर्फ यही कोशिश है और हमेशा यही रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें बुलाया। पेशेंट्स के अलावा हम जो वॉइसलेस, जो ये स्टे डॉग्स, एनिमल्स जो हम उनकी भी हेल्प करते हैं, उनको भी फीड करवाते हैं। उनका भी फीड करने का डेली का उनका तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, उनका डेली का फीड, इवन मेडिसिन्स, कोई भी
कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारी संस्था वो भी काम करती है। वेरी गुड कॉल। किसी को भी हम लोग कभी भी ऐसे नहीं जाने दिया, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोवाइड हुई है। इवन लॉकडाउन में भी हुई है, मतलब जब वो भूखे मर रहे थे, कोई भी मीन्स खाना दे ही नहीं रहा था उसको, लोग भी अवॉइड कर रहे थे कि कोरोना, इनसे कोरोना हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो सेवा मिशन ने पता नहीं कैसे करके उनको फीड दी है, तो ये हमारा काम लगातार चलता जा रहा है। थैंक यू सो मच। आपने हमें बुलाया है यहाँ पे, और हमारी सेवा मिशन लोगों तक पहुँचेगा जगह जगह, जैसे कि बाकी हॉस्पिटल्स में पहुँची है, और सारे चंडीगढ़ तक हमें लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू सो मच जी। अपना शुभ नाम जी? राजेश कुमारी। हाँ जी। मैं पतंजलि योग समिति से जुड़ी हुई हूँ। स्वामी जी का जो सपना है कि घर घर में योग को पहुँचाना ही हमारा परम कर्तव्य है, तो हम उसी के लगे हुए हैं। मैं महिला पतंजलि योग समिति चंडीगढ़ की राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ। जो कोरोना के टाइम में जो हमारी योग कक्षाएं बंद हो चुकी हैं, जैसे हम हर पार्कों में योग कक्षाएं चलाते थे, कोरोना के समय हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो अब स्वामी जी ने हमें मतलब निर्देश दिए, या उनके दिशा निर्देशों के अनुसार हम ऑनलाइन जो हमारे से जुड़ नहीं पाते थे, अब बाहर से विदेशों से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और ये योग कर रहे हैं, योग से आनंद ले रहे हैं, पूरे स्वस्थ और निरोग हो रहे हैं। मेरा यही सभी भाई बहनों से कहना है कि आप योग करें, निरोग रहें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि योग के माध्यम से ही हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब जो विदेशों में भी इतनी सारी प्रॉब्लमें आई हैं, क्योंकि वहाँ के लोग, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग, हमारा खान पान भी एक बहुत अच्छा है ना, पौष्टिक आहार लेते हैं और हम योग के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमें कोरोना को हमने मात दे दी है, क्योंकि हम इससे डरे नहीं हैं। हम रूटीन में योग करते रहेंगे तो हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। मेरा यही सभी से विनम्र निवेदन है कि आप योग करें भी और औरों को करवाएं भी। हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चलती हैं, हमारी ऑनलाइन भी चलती हैं, हर पार्कों में भी अब हम शुरू हो जाएंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे पार्कों में भी करना, क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा खुल गए हैं, अब कोरोना वगैरह तो रहा ही नहीं। और कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि हमें खान पीन के बारे में, जैसे हमें पता चला है कि ये चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, किससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, किससे हम बच सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर जो इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ एनजीओ के द्वारा हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। न्यू किरण वेलफेयर सोशल सोसाइटी की जो प्रेसिडेंट हूँ, और बहुत से संगठन हैं जिनके बीच में मेरा एक अच्छा दायित्व है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सतह पे। लेकिन इन सबसे पहले मैं अपने आप को एक भारतीय नारी मानती हूँ, और मेरा उद्देश्य केवल और केवल समाज सेवा करना है, समाज की त्रुटियों को खुलकर उजागर करना है, ताकि हमारे बीच में बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो कि समाज में चल रही जो त्रुटियाँ हैं या बहुत अच्छाइयाँ हैं उससे भली भांति जानकार नहीं है। तो मेरा मकसद जो है वो स्लम एरिया से लेकर उच्च कोटि तक के लोगों को जागरूक कराना है, और इसी तरह से अपने टीम के साथ मैं दिन देखती हूँ न रात देखती हूँ। एक यही मेरे मन की दृढ़ इच्छा है कि जब तक ये मेरा आखिरी सांस है ये समाज के लिए गुजार दूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी। क्यों? हम एक ही परमपिता परमेश्वर की औलाद हैं, और एक ही रास्ते हम आए हैं और एक ही रास्ते चले जाना है। ना हमने यहाँ कुछ लेकर जाना है ना लेकर आए हैं, जो लिया है वो यहीं लिया है और यहीं छोड़ जाना है। इसी दो उद्देश्य को मन में समाये हुए दिन रात इसी लगन में चलती हूँ। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैडम आप इलेक्शन लड़ो, ये करो वो करो, लेकिन मेरी कोई ऐसी धारणा नहीं है। केवल और केवल अपने आप को समाज के प्रति समर्पित करना है। जय हिंद, जय भारत। हम सब एक ही राष्ट्र के हैं। वंदे मातरम। आप सबका बहुत ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ मौजूद ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ। मेरा नाम दीपा अरोड़ा है।
मैं एनए कल्चरल सोसाइटी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड भी दिया और मुझे ऑनर करा, मुझे यहाँ बुलाया। मैं 2 संस्थाओं से जुड़ी हुई, एक भारत विकास परिषद है जो कि हमारे बहुत अच्छा एनजीओ, बहुत काम करते हैं और हमारा स्पेशल एम है हम बच्चों के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए उनके क्विज़ कॉन्टेस्ट अरेंज। अभी हमने कम से कम सिर्फ मेरे ग्रुप में हमने 400 बच्चों को गुड़ चना बांटा, लड़कियों को खास करके, क्योंकि वो नियमित होती ना, इसलिए हमने उनको गुड़ चना, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला था। फिर मैं योग संस्थान से हूँ, तो भारतीय योग संस्थान से मैं 15 साल से रेगुलर हूँ, योग सिखाती हूँ। मैं अपने 51 सेक्टर में रहती हूँ, वहाँ पे मैं योग की 15 साल से वहाँ क्लासेस ले रही हूँ, फ्री है। हमारे संस्थान में कभी कोई पैसा नहीं लिया, फ्री है। और भारतीय योग संस्थान और भारत विकास पर मैं इनकी तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया ये सेवा करने का। तो हम बच्चों की बहुत सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਮਲਾ ਗੁਗਲਾਨੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, MA BEd। ਰਿਟਾਇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ 2009 ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਮੇਨਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਇਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਛਪੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਸੈਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛਪਿਆ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਛੱਡਣੀਆਂ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਧੋਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਗ ਪਾਲਕ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਪਈਆਂ ਮੁਰਝਾ ਗਈਆਂ। और मेरे हसबैंड कूड़ा भी नाले पिया सीगा, उन्हें सोचा होना भी खरे ये भी कूड़ा ही हो गया, क्योंकि पालक मेथी नैचुरली मुरझा जाती है ना। जो कूड़े वाला आया तो चुक के देन लगे, तो नाले वो जी ना बाल्टी जी भी ना पालक वाली मेथी वाली धोती हुई वो भी नाले चली गई। तो फिर उन्होंने बारे लिखा कि फेंकना क्या था और फेंक क्या दिया, मतलब मजाकिया भी थोड़ा जिहा हो गया ना मेरा। तो फिर मैं एक पोइम लिखी, कहो तो मैं सुना दिनी हाँ। मुश्किल समय बहुत ही मुश्किल मची है हाहाकार, कुदरत से खिलवाड़ का ये तो है प्रतिकार। लॉकडाउन और कर्फ्यू बाहर नहीं है जाना, लॉकडाउन और कर्फ्यू बाहर नहीं है जाना, झांक लो अपने भीतर खुद से मिले हुआ जो मानना। अपन कितना लाभ है ना करे बैठ के। रिश्तों पर जो लगे हैं जाले, रिश्तों पर जो लगे हैं जाले, उनको चलो हटाएं, प्यार का सागर मचले भीतर बाहर क्यों हम जाएं। पढ़ लो जितना जी चाहे संगीत की बहती धारा, धर्म कर्म सब भूल गए विज्ञान का ही है सहारा। अब तो वक्त ही वक्त है खामोशी और तन्हाई भी। अब पहले ना टाइम नहीं हैगा लेकिन मेरा सुन टाइम देता कुदरत ने हैगा। अब तो वक्त ही वक्त है खामोशी और तन्हाई भी, कोई पहरा नहीं है ख्वाबों पर, कल्पना ने ली अंगड़ाई सी। सुनते हैं मिस्टर कोरोना बहुत ही जालिम और दबंग, सब मिलो डटो मैदान में, शुरू हुई एक लंबी जंग। क्या हुआ जो मिल नहीं सकते, करो फ़ोन पे बात, लॉकडाउन कुछ दिनों का फिर जीवन की सौगात। गुंजाइश नहीं होशियारी की, लोग कई ना बड़े फिरदे से ले अपने घरां नूं। गुंजाइश नहीं होशियारी की मानो हुक्म तमाम, गुंजाइश नहीं होशियारी की मानो हुक्म तमाम। 2021 की जनगणना में तभी दिखेगा नाम, तभी दिखेगा नाम। ये मैं पोइम में होर भी कई लिखिया सीगियां। मैं नवें साल ते भी लिखी सीगी और मैं रब नूं फरियाद करके लिखी भी नवां साल चंगा लियाई वे रब्बा, कोरोना दूर पजाई वे रब्बा, मास्क तो छुट्टी दवाई वे रब्बा, सब दे घर खुशियां वरसाई वे रब्बा। इस टाइप की मैं पोइम लिखी। मतलब मेरे काफ़ी आर्टिकल अखबारां विच ना इस तरह के कोरोना ते भी लिखे ते लोगों का मतलब हौसला भी वधाया। तो मेरा मेन है ना मकसद, मैं मतलब मेनली जो ना औरतों के हकों के बारे वैसे
ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਆਰਟੀਕਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੈਸਪੀ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਲਿਆਏ ਮੇ ਰੱਬਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲੇ ਮਿਲੀਏ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਮਸਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਫਾਫੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਐਸੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੰਗਾਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅੱਡ ਰਹਿ ਕੇ लड़ना। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुनीता धवन, वार्ड नंबर 4 की काउंसलर चंडीगढ़ से। और सबसे पहले मैं मुबारक देना चाहूँगी अपनी एनए कल्चर सोसाइटी की अध्यक्ष निखार जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा ये कार्य किया। आज फ्रंट वॉरियर्स को सारे बुलाते हैं, लेकिन इन्होंने 2 स्लॉट निकाले, सुबह भी और शाम को भी। यहाँ पर जो अब मैं आई हूँ, सारे सोशल वर्कर्स आए हुए हैं और चंडीगढ़ से ही नहीं, दूर दूर से भी पहुँचे हुए हैं। वाकई में ही जिन्होंने कोरोना पीरियड में जो कार्य किए उनकी समीक्षा की गई और बहुत अच्छा लगा कि हमारा हिंदुस्तान में ऐसे काम होते हैं। तभी तो हमारा जो हिंदुस्तान है या हमारी भारत की जो धरती है बहुत महान मानी जाती है कि हमारे यहाँ पर ऐसे कार्य करता है। और कोरोना जैसी बीमारी को, महामारी को हमने भगाया भी है। और बड़े यहाँ पर उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए ट्रायल दिया था, जो कि सबसे पहले डर लगता है कि ट्रायल देने में, लेकिन आज इन्होंने उनको भी अवार्ड दिया। मैं एक बार फिर से निखार जी और उनकी मदर पायल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज उन्होंने बहुत अच्छा ये नेक काम किया और ऐसे ही हमारा चंडीगढ़ में नेक काम होते रहे। जय हिंद, जय भारत। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਨਏ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਇਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇਲ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਕਨਸਟੇਬਲਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ प्रोग्राम के जरिए। ये मेयर साहब रविकांत जी आए, तो सुनीता धवन जी आए, IPS ऑफिसर वो आए, तो उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की ये सारे लोगों की, ये सारे मैंबर्स की, जिन्होंने कोरोना के पीरियड इन्ना वड्डा अपना योगदान दिता सोसाइटी वास्ते। तो कुछ लेडीज़ जिन्होंने करोना जड़ियाँ कि होम मेकरस हैं या बिजनेस वूमनस हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तरफों एक योगदान कह दिता जाए, कंट्रीब्यूशन जड़ा उन्होंने सोसाइटी नूं दिता। किसी ने भुखे कुत्तियां नूं खाना पाया, किसी ने बिल्लियां वास्ते कुछ किया, किसी ने मास्क बनाए। तो हर औरत ने अपने वल्लों जो उस तो बन पाया वो किया। असी उन्हां भी 40 लेडीज़ नूं इस विच सम्मानित किया। तो असी चाहते हैं कि काफला इवें वधदा रहे, तो ये जिहड़ा दुनिया हैगी है, सोसाइटी हैगी है, वो होर सुंदर, होर वधिया हो जाए, ताकि असी मिल के इहदे विच बहुत अच्छी तरह रह सकीए। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।